a question and answer session, providing you with the opportunity to clarify your doubts and delve deeper into the topics discussed. I am CA Ritu Gupta, your moderator for the day. I would like to begin this session by apprising you about CASA, Chartered Accountants Students Association. It is an association formed to provide learning platform for practicing professionals and students since 2010. We aim to enlighten through our Knowledge Pack series, and today's webinar is one such part of the Monday Manthan series. The program for this evening is as follows. We will be having a session of 1 hour with our panelists, CA CM Jain sir and CA Asha Sharma ma'am. They both are the fellow members of ICAI and have experience in practicing exclusively in income tax and auditing. May I begin the session by inviting CA Gopalji Agarwalji, our keynote speaker for the session. He is a commerce graduate from Kanpur University and he has completed his CA in 1991, DISA in 2003, LLB in 2006, IFRS in 2012. He is a senior partner at Gopal J. Agarwal and Company, Chartered Accountants firm, and he is a regular speaker on various platforms, including that of ICAI. His areas of deliberation includes Revised Auditor's Report, IFRS, Ind AS, Accounting Standards and Auditing Standards, Revised Schedule 2 and Schedule 3 to the Companies Act 2013. Apart from professional life, he is also a yoga instructor. He is a yoga instructor under the aegis of Bharatiya Yoga Sansthan, New Delhi. Along with Gopal sir, we also have present CM Jain sir, who will be delivering the thought-provoking addresses. We have with us Sumit Garg sir, who is the founder of CASA. He is a fellow member of ICAI, having more than 18 years of experience. He has also served as secretary of NIRC of ICAI during his tenure of NIRC Regional Council member. Sir, along with his team, always believe in grooming young CAs, sharing knowledge through regular webinars and seminars by expert faculties and various other activities for welfare of CA profession. So now I begin the session and request Gopal sir to please address the meeting. सर आपसे थोड़ी सी इजाजत चाहूंगी पहले जी एक बार मैं सुमित जी से रिक्वेस्ट करूंगी यस यस टू गिव अ वेलकम एड्रेस एंड टू इन्फॉर्म आवर ऑडियंस अबाउट द कासा एंड सर सुमित सर प्लीज Thank you, Asha, and thank you, Ritu, for wonderful introduction of this CASA. And thanks to Gopalji Agarwal, my elder brother, who always ready to grace to share the knowledge members at last. And I always try कि सर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज सीखी जाए which is relevant for members for personally. अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, जीएसटी की बात करते हैं, that is related to the client. If penalty is there, client will bear. बट हम जब ऑडिट की बात करते हैं तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेंबर्स. अगर यहाँ पर हम कोई लैप्सेस करते हैं, कोई मिस्टेक करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं डिसिप्लिनरी में हम नफरा में जा सकते हैं, FRRB, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, FR, इतने तरह के हमारे रिव्यू प्लेटफॉर्म है, मैकेनिज्म है, जहाँ पर हमें penal provisions फेस करने पड़ते हैं. तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंबर ईच वन ऑफ अस. सो आज का डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हम ऑडिट ट्रेल की बात कर रहे हैं कि ऑडिट ट्रेल की किस तरह हमें रिपोर्टिंग करनी है. इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में द ओनली डॉक्यूमेंट विच इज टू बी शेयर्ड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अदर क्वालिफिकेशंस, कोई भी अगर आप लोगों के डाउट्स हैं कि कोई ऐसी चीज जो रिपोर्टिंग करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम लोगों का फोकस होगा कि उस इश्यू को भी टेकअप करें और उन कहाँ पर उनकी प्लेसिंग करनी है, कहाँ पर. तो अल्टीमेट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल लर्न कि वेयर वी हैव टू रिपोर्ट इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. इन इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में हमें कौन सी चीज कहाँ पर प्लेस करनी है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, विच कैन सेव अस. सो विद दिस बैकग्राउंड I once again welcome to each participant for joining continuously
on this Monday Manthan series, where we are discussing regular each Monday different topic. And if you have any suggestion regarding this, you can share with me or Asha or Ritu ma'am. So today's topic is before you. Now I request Gopal sir to take up the technical session, which is very important for all. What do you say? Yeah, so good evening, friends. Good evening, Sumit ji, CM Jain Saab, Asa ji, Ritu ji, and all my friends connected here with or who would be able to hear after even the program. इसमें मैंने सुमित जी से भी एक रिक्वेस्ट यही की थी कि इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएं, क्योंकि प्रोग्राम 3 मिनट का है और 3 लाइन का है, राइट? तो इसमें लोगों के, जैन साहब जरा अपना भी अनम्यूट कर लो आप सिस्टम। एक बार मैं ये जरूर एट द आउटसेट फीडबैक चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट आज हम बैठे हुए हैं 26 मई 27th में 27th में है, 27 तारीख हो गई ना आज। तो जी जी काफी लोगों ने कुछ रिपोर्ट्स इशू कर दी होंगी। लिस्टेड कंपनीज में तो खैर ऑफ कोर्स लिस्टेड की जिसके पास होगी उसने इश्यू करी होगी, Listed में तो अपार्ट फ्रॉम दो कभी नहीं किए किसी ने तो की। लिस्टेड में भी मैं बताऊं जैन साहब, एक बैलेंस शीट में आपको शेयर करूंगा, उसके ऑडिटर ने कहा है कि ये ऑडिट ट्रेल 1424 से एप्लीकेबल होगा। ये मैं लिस्टेड कंपनी की बात बता रहा हूँ। तो उसने, मैंने काफी ट्राई किया फिर नोटिफिकेशन ढूंढने का, क्योंकि आजकल आप ये नहीं कह सकते कि आप अपडेटेड हैं, लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं जिसने फर्दर 1 साल के लिए डेफर कर दिया हो। सर उसमें 3 चीजें हैं सर, आई थिंक उस पर रिपोर्टिंग तो नहीं करी ना उसने ना, कि... उसने तो ये कह दिया कि ये प्रोविजन पूरा रूल। अच्छा ओके, हाँ 11G ही उसने कहा कि प्रिजर्वेंस की बात नहीं की होगी, हाँ, सर कह रहे हैं ना, preservance की पूरा बात ही नहीं उसने की, बोल हाँ। दिया कि applicable। प्रिजर्वेशन की केवल बात नहीं करी उसने, पूरा हमने कहा Okay. ये देखो, ये लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर्स की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि पीपल आर नॉट अवेयर डिस्पाइट बीइंग हैविंग सो मेनी रेगुलेटर्स अपॉन अस। और अभी एक प्रोग्राम किया था चोपड़ा सर ने, मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि रेलेवेंट पॉइंट है। और उसमें नासा, अब इसने नफरा के मेंबर थे कुलकर्णी साहब, जैन साहब आपका भी, तो उनसे बात पूछी गई। हम लोगों ने ये पूछा कि भाई आप ऑडिटर्स के ऊपर तो इतनी सारी चीजें ला रहे हो, इतनी इस तरह की 2.5 करोड़ की पेनल्टी तो अभी एक रिसेंट जजमेंट में लगाई रिलायंस कैपिटल में, कहीं कुछ 10 साल तक की पनिशमेंट है, 79 केसेस करीब डिसाइड कर चुके हैं लोग। व्हाट यू आर डूइंग अबाउट द मैनेजमेंट। तो नफरा की एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट ये थी कि मैनेजमेंट के अगेंस्ट में हमारे पास कोई पावर्स नहीं है। We are writing to MCA, we are writing to the appropriate authorities, SEBI and all that, and they are basically the regulators for the management. We are only the regulators for the auditors. So this is the height probably to my mind कि एक अगर आप एक चीज को स्टडी कर रहे हैं और उसके स्टेक होल्डर्स या प्रिपेयर्स और ऑडिटर्स अलग अलग थोड़ी ना हो सकते, कि एक पार्ट को आप छोड़ रहे हैं। ये मतलब लेजिस्लेटिव प्रॉब्लम है। आई एम नॉट सेइंग कि नफरा इज डूइंग रॉन्ग। क्यों जैन साहब, अगर आप ऑडिटर्स के ऊपर इतनी सारी चीजें लगा रहे हो, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट ऑल्सो, बट vis-a-vis मैनेजमेंट शुड ऑल्सो बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। और अभी तक आई कुड नॉट विटनेस थ्रू द डिसीजंस ऑफ एनी अथॉरिटी जहां मैं ये कह सकूं कि देखो नफरा ने ये ऑर्डर पास किया रिलायंस कॉमर्शियल लिमिटेड के अगेंस्ट में, जहां पर ऑडिटर्स को इस तरह से पेनल्टी लगाई, तो मैनेजमेंट के अगेंस्ट ही एक्शन हुआ। आई कुड नॉट फाइंड एनी सच ऑर्डर्स जहां पर मैनेजमेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन मैटरलाइज हुआ हो। दे मे बी इन द प्रोसेस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, दे मे बी अंडर प्रोसेस, बट since last 2.5 years or 3 years, where around 80 orders have been passed by Nafra against the auditors, I could not find a single decision against the management. बेसिकली सर ये जितने भी मैटर्स जो आ रहे हैं वो ऑलरेडी क्या कहते हैं, इन कहीं ना कहीं किसी ना किसी अथॉरिटीज के पास ना एलिगेशन के बेसिस एलिगेशंस है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वहीं से वो रिपोर्ट होके आते हैं, वहीं से रिपोर्ट होके आते हैं, बट और उनके डिसीजंस नहीं आ रहे। आप ये देखो वहां पर कोई लेंथी प्रोसेस है लॉ का, यहाँ तो बहुत शॉर्ट प्रोसेस है नफरा का। नहीं सर, सेबी के जो जितने भी मैटर्स हैं ना, उनमें पेनल्टीज, ऑर्डर, कन्फिस्केशन और सब कुछ हो चुका होता है, उसके बाद नेफ्रा के पास जाते हैं। नहीं, कहीं क्या हो रहा है कि जैसे ही सेबी के पास मैटर आया उसने साथ के साथ नफरा को लिख दिया, एंड स्टिल द थिंग्स आर अंडर इन्वेस्टिगेशंस। नहीं, अब उन्होंने क्या किया, मल्टीपल एजेंसीज को लिखा, ये भी बात पॉइंट आउट हुई। कहीं आप SFIO को भी लिख रहे हो। मेरा ये कहना
है कि सेबी जब तक डिसाइड नहीं कर लेती मैटर को तब तक नेफ्रा को नहीं लिखती, नहीं, इट इज क्योंकि वो नॉट पहले लाइक ही दैट। ना ना ना, नॉट एट ऑल। They अच्छा, are just asking कि you just see the role of the auditors. Okay. SEBI is not looking the role of the auditors. Mind it. They are looking the role of the management. SEBI is not directly issuing any kind of notice to the auditors. They are नहीं, just कई लोगों को उन्होंने सम्मन्स किए हैं हाँ, और स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करी है सेबी but अथॉरिटीज they ने। have not passed any order. They have just said कि ये हो सकता है डिमार्केशन बनाया हो कि नफरा को इनको भेज दो, लेट्स द हाँ, नफरा डिसाइड अगेंस्ट द ऑडिटर्स। या ठीक है हाँ, ना। बट यस, अभी जितने जजमेंट आए उनमें मैंने काफी कोशिश की कि इनकी सेबी की साइड से या किसी पोर्टल से, अथॉरिटेटिव पोर्टल से कोई जजमेंट ये मिल जाए कि भाई जिसमें नफरा के ऑर्डर्स आए हुए हैं उसमें इन्होंने क्या डिसीजंस लिए। अंडर इन्वेस्टिगेशन चीजें हो सकती है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है कि नफरा के अंदर इफ यू फाइंड विद इन 12 मंथ्स मैटर डिसाइड हो जाता है। कई मैटरों में सर आरओसी ने क्या कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की है अच्छा। 243 सेक्शन में या तो 279 ऐसी उसमें कुछ समथिंग है। उसमें मुझे ऐसा हाँ, लगता है जैन साहब कि वही फिर लिथार्जिक रूल चलेगा, 20 साल केस चलेंगे। हाँ, ये हैं? बात तो सही है कि कम से कम 15 साल से पहले वो मैटर हर्ट नहीं होना। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑडिटर्स का फेट है वो तो 1 साल में डिसाइड हो रहा है। आई कैन से लाइक दिस, ऑडिटर्स का फेट तो विद इन 1 ईयर डिसाइड हो गया नफरा से। और कई बार 2-3 जजमेंट्स में आप अपील करके भी देख चुके हैं एंड यू हैव सीन द रिजल्ट ऑफ दैट। नफराज ऑर्डर हैज बीन अपहेल्ड बाय द अपीलेट अथॉरिटी ऑल्सो। तो इसका मतलब ये हुआ सुमित भाई कि ऑडिटर्स का फेट तो 1 साल में डिसाइड हो गया। यस सर, मैनेजमेंट का फेट हो सकता है ऑडिटर्स की लाइफ टाइम में डिसाइड ना हो पाए। यही हो रहा है सर, बिलीव मी, बिलीव यही मी, हो रहा है। वी आर विटनेसिंग। एक फर्स्ट अपील आप जाते हो तो पता लगा 20 साल लग जाते हैं, फिर सेकंड अपील, थर्ड अपील, और यहाँ पे तो जजमेंट पास हो गया, उसको टाइम मिला कि आप अपील में जा सकते हो, वो अपील का ऑर्डर भी आ गया। अब तो उसका नाम तो रिमूवल होना ही है, क्योंकि अगर अपीलेट अथॉरिटी ने भी ऑर्डर कर दिया, आप ठीक है एसएलपी वगैरह फाइल करोगे, उसमें भी आप कहाँ कितना आपको फेवर मिलता है। तो केवल सेंसिटाइज करने की ये जरूरत है कि, और जो मैं शुरू से कहता रहा हूं कि केवल एक ही डॉक्यूमेंट है जो हमारे लिए ट्रबलसम है, और वो है ऑडिटर्स रिपोर्ट। और ये नफरा आने के बाद तो ये चीज बिल्कुल और ज्यादा हाईलाइट होके आ गई, बिल्कुल प्लेटर में लग के आ गई कि दे यूज्ड टू स्टार्ट विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बाद में जाते हैं। और जब मैं कहता था सुमित भाई, अगर आपको याद हो कि मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ आर मिसयूज्ड बाय द ऑडिटर्स, मैं कहता था ना, आपको याद होगा। यस सर, नाउ इवन नफरा हैज स्टार्टेड टू सेइंग इट। उन्होंने कोट किया इसमें रिलायंस कॉमर्शियल के अंदर कि emphasis of matter paragraph को you have misused this paragraph. Instead of giving the qualification, you are giving by way of EOM. सर करेक्ट वे ही नहीं है जो उन्होंने करेक्ट बताया वे, उसमें। हाँ बिल्कुल। तो आप, मेरी एक हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग यहाँ जुड़े हैं और बाद में जुड़ेंगे, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, जो एश्योरेंस प्रोफेशन में है, कम से कम नफरा का एक ऑर्डर जरूर पढ़े। गीता की तरह पढ़े, भागवतम की तरह पढ़े, बाइबल की तरह पढ़े, कुरान की तरह पढ़े, एक ऑर्डर जरूर पढ़े। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट रिलायंस टू ऑल का ही माई देख रहे हैं, फ्रेंड्स। 26 अप्रैल का रिलायंस होम फाइनेंस का, that will सारे ऑर्डर्स, ऑल द ऑर्डर्स आर क्रोनोलॉजिकली पोस्टेड एट द नफरा वेबसाइट। NFRA डालेंगे, जैसे ही आप नफरा ऑर्डर्स गूगल पे डालेंगे तो ऑर्डर सारे आपके पास आ जाएंगे। उसमें आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर एनी वन ऑर्डर, एनी वन ऑर्डर, काइंडली रीड इट। और बल्कि आशा जी, पहले क्या होता था, 150 पेज के ऑर्डर्स आ रहे थे, अब उनके पास केसेस इतने हो गए कि 25-30 पेज में वो समअप कर देते हैं। राइट? तो आपको बहुत 150 पेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं, 25 पेज में आपको बिल्कुल थीम निकल के आ जाएगी कहाँ पे प्रॉब्लम थी, एंड यू विल अप्रिशिएट की जो प्रॉब्लम्स वहां हैं। मैं केवल सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम नॉट बेसिकली ब्लेमिंग एनीबडी। केवल ये कि आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई, आप यू जस्ट सी इट। कोई भी ऑडिटर्स को इसलिए हेल्ड अप नहीं किया गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बने हुए थे, केवल इसलिए किया गया कि यू फेल टू पॉइंट इट आउट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग थे बाय योर इन योर ऑडिट रिपोर्ट। आपने उन पैराग्राफ को, आई कैन शेयर विथ यू जैन साहब, अगेन यू सी द बैलेंस शीट ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड, यू सी द बैलेंस शीट ऑफ MTNL लिमिटेड, 40 क्वालिफिकेशन सुमित भाई, 13,000 करोड़ के रिसीवेबल्स कंफर्म नहीं है, रिकंसाइल्ड नहीं है, सब्जेक्ट टू दिस, और यू आर सेइंग
that the financial statements are true and True fair. and correct. Accept this. Accept 40, this. after 40 qualifications, these are the public documents that I am naming. Otherwise, I have no intention to defame anybody. Let me make it clear. These are the MTNL is a listed entity. And if you are reporting like this for 30, 40, 20 Okay. qualifications and financial statements are true and fair. मतलब आप audit report is going into 20 pages. Still the financial statements are true and fair. I am counting the pages of the auditor's report, जैन साहब 15 पेज 18 पेज की आपकी ऑडिट रिपोर्ट है एंड केवल क्वालिफिकेशन, और कहीं तो आपको क्वालिफिकेशन भी नहीं मिलेगी, एम्फेसिस पैराग्राफ अदर मैटर पैराग्राफ से और की ऑडिट मैटर से काम चलाने की कोशिश की गई है। और रिलायंस कॉमर्शियल का तो आई ओपनर जजमेंट है देखा जाए तो, जिसमें कि आपका आउटगोइंग ऑडिटर्स फ्रॉड रिपोर्ट कर देता है एमसीए के अंदर 143(12) में, एंड the single auditor is saying that auditor was not correct. The fraud has not happened. There is no fraudulent practice. इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मतलब you are putting yourself into the hanging position yourself. ये suicidal attempts है to my mind. और इसी तरह से ये जो ऑडिट ट्रेल का इस बार इशू आ रहा है, इसमें इसको लाइट में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक डेट में आप ऑडिट ट्रेल इंप्लीमेंट नहीं करा पाएंगे कहीं भी। माइंडेड ट्रेवल, वो टाइम ट्रेवल बैक थ्योरी जो चल रही है ना सुप्रीम कोर्ट में, जैसा वो यहाँ नहीं लग सकती कि अब आप किसी भी सॉफ्टवेयर आईटी एक्सपर्ट को पकड़ लाओ कि भैया अब चिट्ठी आ गई है, आप कम से कम नहीं सर, कुछ लोग हैं जो बहुत कलाकार हैं सर जी। तो पॉइंट ये है कि उस कलाकारी की बैक डेट में ऑडिट ट्रेल स्टार्ट कर दे रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं आई डाउट इट। देखो जहां पे अगर कोई स्टार्ट करने वाले तो उसको दूसरा निकाल भी लेगा कि आपने, इसलिए उसने वर्ड वहां पे या क्या यूज किया है कि टेम्परिंग तो नहीं की जा रही कहीं, लेजिस्लेशन ने खुद वर्ड यूज किया है, इज देयर एनी टेम्परिंग। लेकिन सर हम लोग ऑडिट ट्रेल की रिपोर्ट एक्टिविटीज की कि किस डेट को ऑन हुआ, कैसे हुआ, कैसे फाइंड आउट करें टैली में, अदर बिजनेस सॉफ्टवेयर के अंदर। जितने भी रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ एमएसएमई की तरफ, क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी लार्ज एंटिटीज की तो बात छोड़ दो। सर इस पर पहले एक बार बैकग्राउंड बता दीजिए कि ऑडिट ट्रेल की कैसे ट्रैक करके रिकॉर्डिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। देखो इसमें देखो दो तरह की चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी कंपनी या ऑल कंपनीज आर कवर्ड, वेदर इट इज लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसएमसी, 1% कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, एवरी कंपनी इज कवर्ड अंडर दिस रूल 11G। सर एलएलपी भी कवर्ड है क्या? नो अरे भैया थोड़ा तो रैम खा लो अभी। राइट, एवरी कंपनी इज कवर्ड अंडर दिस। और उसमें बेसिकली दो डायरेक्ट प्रोविजंस है। सुमित भाई बिल्कुल ठीक कहा सुमित भाई ने, ऐसे ही आप लोग इंटरेक्ट करेंगे कि देखो दो प्रोविजन है इसके अंदर। एक तो प्रोविजन आपका है जो रूल 3(1) के प्रोविजन में दिया हुआ है, जो मैनेजमेंट का पार्ट है, प्रोविजन टू रूल 3(1) ऑफ द कंपनी ऑडिट कंपनी अकाउंट रूल्स 2014। दोनों रूल्स 2014 के हैं। ये रूल क्या कहता है कि हर एक कंपनी, एवरी कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर अकाउंट, कोई भी विच यूजेज एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अगर आप मैनुअली कर रहे हैं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, तो ये रूल आपके लिए नहीं है। केवल आपको ये लिखना पड़ेगा सिंस द कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनुअली, हेंस क्लॉज 18 रूल 18G इज नॉट एप्लीकेबल, राइट। लेकिन आप ये देख लीजिए कि मैनुअली कितनी कंपनियां कर रही हैं इन टुडेज पार्लेंस। कुछ थोड़े से हिंट में जरूर देना चाहता हूं जैन साहब कि जो डोरमेंट कंपनी है या जहां पर 10-20 ट्रांजेक्शंस हैं, दे कैन मेंटेन द अकाउंट्स मैनुअली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कि ऑडिट फीस का प्रोविजन डालना है, कुछ आरओसी की फीस डालनी है, कुछ और 10-5 ट्रांजेक्शन है बैंक के अंदर, सो वन कैन मेंटेन द बुक्स मैनुअली, बट अदरवाइज it is very difficult to say that the books are being maintained manually. And if you are not maintaining the books of accounts manually, then you are maintaining it through computer. तो आपका ये रूल 11G ऑडिटर्स के लिए है और रूल 3(1)
का प्रोविजो मैनेजमेंट के लिए। वो क्या कहता है कि एवरी कंपनी which uses accounting software for maintaining its books of accounts shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail for each and every transaction। जैसा वर्ड देखना, फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। इसमें कुछ लोगों ने आशा जी हमसे क्या कहा कि वो तो ये कह रहा चेंजेस रिकॉर्ड होने चाहिए, चेंजेस की बात नहीं कर रहा सर, वो कह रहा ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन की ऑडिट ट्रेल होनी चाहिए। इसका मतलब कि किस यूजर ने उसको फीड किया, अगर यूजर्स डिफाइंड है, और किस दिन और किस टाइम पे फीड किया गया, जिसकी टाइम स्टैंपिंग हम शॉर्ट में बोलते हैं। ट्रांजैक्शन के समय टाइम स्टैंपिंग होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर। तो पहली चीज है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी recording audit trail of each and every transaction, creating an edit log of each transaction, such change made in the books of accounts along with the date, और कब वो चेंज किए गए, और साथ में ये इंश्योर करना है कि ये डिसेबल्ड तो नहीं किए जा सकते हैं, टेम्पर तो नहीं की जा सकते किसी स्टेज पे। तो इसको कौन वेरीफाई करेगा? वी आर नॉट द एक्सपर्ट आशा जी। टू माई माइंड, एज फार एज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज कंसर्न, वी आर गुड इन रनिंग, वी कुड बी, we are not good in coding। तो उसके लिए we have to rely on the experts also। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो you can seek the expert opinion। हमारा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 620 is very much applicable in this। कि अगर आपको कहीं लगता है कि मैं, जैसे जैन साहब ने कहा बैक डेट में लोग जाके, तो आपको काउंटर करना पड़ेगा सर कि आपको एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, कहीं बैक डेट में कोई डिसेबल तो नहीं किया गया फीचर, कहीं टेम्परिंग तो नहीं की गई इनके साथ। हमारे पास तो एक ऐसी घटना आई कि जी। कोई भी एंट्री अमेंडमेंट ही नहीं है। तो जब मैंने स्ट्रिक्टली जब क्लाइंट से पूछा, मैंने कहा करा क्या, हाँ। बोला भाई साहब मैंने नेट बंद किया, डेट चेंज करी और ऑडिट ट्रेल ऑन कर दी 1 अप्रैल 2000। वो पूछता है मेरे से कि किस डेट से करनी है, जी। तो मैंने 1/4/2023 से कर दी भाई साहब। नहीं तो ट्रांजैक्शन की डेट क्या आ रही है उसकी रिकॉर्डिंग की? उसके 1/4/2023 वही सारी डेटा दिखा रहा है। जिस डेट में रिकॉर्ड की गई है ट्रांजैक्शन। हाँ, मैंने कहा भाई साहब आपको बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, तो अब देख लो इसमें अगर इस तरह की कोई चीज इसका मतलब कि आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, टैम्परिंग है। कोडिंग में दिक्कत है। अब मैं कैसे इंश्योर करूं? मैंने कहा यार एक भी गलती नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है? हालांकि आप, मैं तो मैं भी करके देखूंगा और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को जरूर करके भी देखें, क्योंकि तो कहने जैसे का सैम्पलिंग जैसे हम लोग करते हैं उसी तरह से एट रैंडम हम वहां पे कुछ बैकडेट एंट्रीज कई बार ये और होता है कि डिफरेंट सर यूजर्स के सर थ्रू क्या कहते डालते हैं, हुए आदमी देखते एंट्री हैं। कर रहा होता है तो नरेशन नहीं लिखता, बाद में नरेशन लिख दी जाती है। यस, तो मैंने कहा कुछ तो चेंज हुआ होगा, डाटा में कुछ चेंज ही नहीं है। अच्छा, तो वो कह रहे नेट ऑफ करके आप कर सकते हैं? नहीं, नेट ऑफ किया, सिस्टम पे अपना डेट चेंज करी उसने, अच्छा। और फिर ऑडिट ट्रेल स्टार्ट कर दिया उसने। हाँ, तो इसमें देखो ये सब ऑडिटर्स, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने कहा कि वंस अगर आपको लगता है कि कोई एक्सपर्ट ओपिनियन आपको चाहिए, क्योंकि आईटी कंट्रोल्स की बात हो रही है यहाँ पर, आईटी कंट्रोल्स फेल हो रहे हैं आपके, और सॉफ्टवेयर के आईटी कंट्रोल फेल हो रहे हैं, तो वी कैन सीक द एक्सपर्ट ओपिनियन। और मार्केट में जिस तरह के सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं उनको आपने देखना है कि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर हो रहा है यूज, तो उसमें अगर ये पॉसिबिलिटी है तो वी हैव टू बी टेक द और एक्स्ट्रा। सर एक और इशू है कि कोई भी सॉफ्टवेयर, जो मेरी नॉलेज है, जी। कोई ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड कोई रिपोर्ट जनरेट करके नहीं दे रहा। उसके लिए इन्होंने क्या करा है जैन साहब, मैं बताऊं, आपकी मेरी बात हुई टैली में एट लेंथ, कि दे आर चार्जिंग अ हैंडसम अमाउंट फॉर दैट। कि आप इस, हमारे पास रिपोर्ट्स तो है, लेकिन आपको अगर एट ए प्लेस आपको जनरेट करके चाहिए, तो उसके लिए आपको कस्टमाइजेशन टीडीएल लेना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉस्टिंग यू ऑलमोस्ट अमाउंट टू द सॉफ्टवेयर कॉस्ट। बिकॉज इन अदरवाइज केस टैली में वो एंट्री बाई एंट्री दे रहे हैं ट्रेल हाँ, खाली, कि आपको वो तो बहुत ट्रांजेक्शन, ही टेडियस जॉब है उसको एज एन ऑडिटर देखना। हाँ हाँ, ट्रांजेक्शन वो वाइज तो आप देख देख ही नहीं सकते हो। सकते आप। नहीं देख सकते हो। जैन सर रजत जी का क्वेश्चन आ रहा है, विच सॉफ्टवेयर योर क्लाइंट इज यूजिंग? टैली, जैन साहब ने मार्केटिंग कर दी उसकी सॉफ्टवेयर की। टैली टैली। ओके ओके। बट आई डाउट इट, जैन साहब एक बार खुद करके भी देखना, अगर नहीं, इस तरह मैंने करके देख लिया फिर। हो गया हाँ, तो वो वी शुड पूछता है किस एस्केलेट, डेट से है। सो वन शुड एस्केलेट दिस मैटर विद द टैली पीपल आल्सो, क्योंकि ये आपकी अकाउंटिंग बेसिकली आपके कंट्रोल्स फेल हो रहे हैं यहाँ पर कहीं ना बिकॉज इन दैट केस इट विल बी इक्विवेलेंट टू नो ऑडिट ट्रेल नो एडिट लॉग। कहीं। यस क्या? यस। और अगर
और इसमें तो कोई देखो, आज के रेगुलेटर भी कह सकता कि आपने क्या ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, जब आपको पता था Right. मार्केट में ये चल रहा है, तो हैव यू डन इट योरसेल्फ? क्योंकि इसके अंदर जितनी भी डेफिशिएंसीज आएंगी, देखो इसके अंदर एक तो सबसे बड़ी बात है, कई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग डायरेक्टली हिट हो रहे हैं। एक तो ये है कि आपने रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेनी है, स्पेशली इसके लिए अलग से ऑडिट ट्रेल के लिए। और इंस्टीट्यूट का 1 जनवरी 2024 में सर लेटेस्ट गाइडेंस नोट है, इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस नोट ऑन रूल 11G ऑफ द कंपनीज जब ऑडिट एंड ऑडिटर्स आप रूल 3 पढ़ा रहे थे तो मैंने वही डाउनलोड किया था। हाँ तो वो तो लेकिन मैनेजमेंट सर के जब लिए रिपोर्ट से नहीं निकल पा रही है ऑडिट ट्रेल की, तो इसको हम लोग कैसे उसको वो वेरीफाई करेंगे? या मैनेजमेंट उनको मैनेजमेंट के लेटर के साथ, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के साथ उसको अटैच कैसे करेंगे? नहीं नहीं, इसमें क्योंकि मैम, इसमें रितु जी ऐसा करना पड़ेगा कि जो जहां पर साइजेबल कंपनी जिनका साइज ठीक ठाक है, उनसे कहना पड़ेगा कि हमें ये जितना ऑडिट ट्रेल है, इसकी रिपोर्ट एट ए प्लेस चाहिए। एंड दैट इज वेरी मच पॉसिबल। कोई ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी वो रिपोर्ट। उसके लिए ठीक है, 5-10 हजार जो भी कॉस्ट आएगी वो दैट दे विल बियर, बट द रिपोर्ट विल बी देयर। चाहे कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, all accounting softwares have been basically updated and they are providing both kind of versions, with edit log, without edit log. So if they are utilizing it edit log, then the report will be there. और अगर थोड़ी सी ट्रांजैक्शन है तो हम मैटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट के बेस पर वी कैन चेक, बट अगर न्यूमरस ट्रांजैक्शंस आर देयर, then of course we need the basically edit log at a place to see it. अदरवाइज हम कैसे छांटेंगे Right. कितनी ट्रांजैक्शन? फिर आप मैटेरियलिटी लगाओगे, फिर हो तब भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। फिर आप एक आर्टिकल को केवल इसीलिए बिठाओगे कि 10 दिन में ये हमें पूरा चेक करके देगी। ऑडिट ट्रेल ही करेगा। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को ऑफ कोर्स ध्यान में रखते हुए कि कहाँ कहाँ कितने कितने चेंजेस किए गए हैं। आप यू सी द एग्जांपल ऑफ एक्सेप्शनल रिपोर्ट इन बैंक्स। भाई एक्सेप्शनल रिपोर्ट भी तो इसी तरह की होती है कि बहुत लंबी चौड़ी होती है, उसमें आपने मैटेरियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार की ऑडिटर्स रिपोर्ट अगर इस पॉइंट पे क्लीन जा रही है, तो एक बिग क्वेश्चन मार्क ऑडिटर्स का है। बेसिकली वी आर गिविंग आवरसेल्व्स इन ट्रबल। अगर वहां पर एडिट लॉग नहीं लगा हुआ है, उन्होंने कंट्रोल से नहीं लगाए हैं, पुराना वर्जन यूज किया है, तो वी हैव टू क्वालिफाई दी ओपिनियन। और इसके लिए जब क्वालिफाई करेंगे तो हम पहले सेकंड पार्ट की बात करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स में जहां हम लिखते हैं कि वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी एज पर अवर एग्जामिनेशन। वहां पर 3 क्लॉजेज जैन साहब डायरेक्टली हिट हो रही है। ऋतु जी बता सकता है कोई कौन कौन सी क्लॉज हिट हो रही है? थोड़ा सा सेंसिटाइज करने के लिए, अगर मेरा मतलब क्वेश्चनिंग का नहीं है, अगर किसी को मालूम थोड़ा सा चैट बॉक्स में दे दें कि कौन कौन सी क्लॉज हिट हो रही है इससे। अगर कोई भी क्वालिफिकेशन या मॉडिफिकेशन इस पर देना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी देखा जाए तो 5 ही क्वेश्चन है ऑडिटर्स के लिए। और अगर किसी में भी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी हो गई क्लॉज। इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लीट नहीं है इसमें। ये आपकी हो गई क्लॉज नंबर 143 का सबसेक्शन 3 का क्लॉज बी। जैन साहब देखा जाए तो 143.3 के ऑर्डर बड़े, तो हम भी 143.3 का ऑर्डर ही कर रहे हैं। है ना? Yes, बिल्कुल सही है सर। स्क्रूटनी ऑफ द असेसमेंट। हाँ, असेसमेंट कर रहे हैं तो 143.3 का ऑर्डर कर रहे हैं। उसके अंदर क्लॉज बी है which talks about कि whether proper books of accounts have been maintained by the company। यहां पर अगर ऑडिट ट्रेल नहीं लगाया है तो सबसे पहले तो आपकी इस क्लॉज पे ही आपका मॉडिफिकेशन आएगा। आई एम नॉट सेइंग डिस्क्लेमर आएगा, क्योंकि आपका हो सकता है लिमिटेड उसमें मॉडिफिकेशन हो। देन एक इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे भी वहां पे रिपोर्टिंग रहती है बाय द मैनेजमेंट। हाँ, अभी थोड़ा आप रिपोर्ट पे हाँ कन्फाइन करें। हाँ, 143.3 पे आपका आ गया। अगर उसने नहीं लगाया, हम ये एक सिनेरियो लेके चलते हैं, देखो प्रैक्टिकल बिल्कुल बात करते हैं। एक सिनेरियो ये है कि उसने नहीं लगाया, मार्च 24 तक ऑडिट ट्रेल नहीं था, या पार्ट ऑफ द ईयर लगा दिया, जनवरी से लगा दिया, दिसंबर 23 से लगा दिया, तो आपको पहली क्लॉज तो ये लिखनी पड़ेगी 143.3 बी की। जब आप क्लॉज कर रहे हैं तो उसके अंदर मैं एग्जैक्ट वर्ड बताता हूं, वो लिखता है कि वेदर इन योर ओपिनियन प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, क्या कह रहा है, एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी सो फॉर एज अपीयर्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ दोज बुक्स। तो वहां पे आप लिखेंगे, ये वर्ड तो लिखेंगे, साथ में लिखेंगे एक्सेप्ट
एक्सेप्ट अवर रिजर्वेशन अगेंस्ट क्लॉज नंबर सो। अब आप नीचे की क्लॉज का एक रेफरेंस देंगे जहां पूरी की पूरी मॉडिफिकेशन है, क्योंकि रूल 11G आपका देखा जाए ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सबसे नीचे आएगा, तो आप उसको रेफर करेंगे उस क्लॉज को कि एक्सेप्ट द मॉडिफिकेशन और द क्वालिफिकेशन रिपोर्टेड अंडर क्लॉज सो एंड सो। आप पूरी लिखने की जरूरत नहीं है रिजर्वेशन कि आप क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट द क्वालिफिकेशन विथ रिगार्ड टू ऑडिट ट्रेल एज डिटेल्ड इन क्लॉज नंबर सो एंड सो। अपनी ऑडिट रिपोर्ट का रेफरेंस देंगे, ऑफ कोर्स अपनी ही रिपोर्ट का। एक इसमें बेसिकली 3 क्लॉजेज जन साहब इफेक्ट हो रही हैं, तो जो डायरेक्ट रूल 11G वाली क्लॉज है वहां तो पूरी हम लिखेंगे अपनी क्लॉज कि द कंपनी हैज नॉट बेसिकली इंप्लीमेंटेड द ऑडिट ट्रेल ऑब्लिक एडिट लॉग ड्यूरिंग द ईयर, राइट। अगर नहीं लगाया उसने, अगर लगाया है तो किस डेट से लगाया या किन सॉफ्टवेयर में नहीं लगाया, हो सकता है वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। अकाउंटिंग के लिए भी करते हैं लोग कि HR की अकाउंटिंग अलग हो रही है, पेरोल की Right? अलग हो रही है। हाँ, हाँ ठीक है, पेरोल HR की अकाउंटिंग के लिए सेपरेट रखते हैं पेरोल mostly। की अलग कर रहे हैं, इन्वेंट्री की अलग कर रहे हैं, सो मैनी, तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर कुड बी देयर। तो अगर आपको रिजर्वेशन देनी है तो हो सकता है आपकी पार्ट हो, तो जब रूल 11G में रिजर्वेशन लिखेंगे तो फुल फ्लैश नोट आएगा आपका क्वालिफिकेशन का। लेकिन बाकी 2 जगह, एक तो रूल 140, जब आप सेक्शन 143(3)(b) पे रिपोर्ट लिखेंगे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, तो लिखेंगे एक्सेप्ट द मैटर्स एज पॉइंटेड आउट अंडर दिस क्लॉज नंबर सो एंड सो। एक और क्लॉज है हमारी इसी 143(3) में, 143 आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट। तो कई बार कहें कि 143 क्या, 143 सेक्शन की बात कर रहा हूं, सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिस सेक्शन में हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, उसकी क्लॉज 3, उसका क्लॉज H, वो क्या कहता है कि इफ देयर इज एनी मॉडिफिकेशंस इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन, रिमार्क्स, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं वो 143(3)(H में, एनी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क्स रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। तो एक यहां पर आपका क्लॉज आएगा कि काइंडली रेफर अवर नोट नंबर सो एंड सो विथ रिगार्ड टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स वेयर द ऑडिट ट्रेल हैज नॉट बीन इंप्लीमेंटेड और पार्टली इंप्लीमेंटेड। दूसरी क्लॉज ये इफेक्ट होगी हर ऑडिटर्स रिपोर्ट में, इन ईच एंड एवरी ऑडिटर्स रिपोर्ट, वेदर इट इज द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ SMC, स्मॉल कंपनी, OPC, कोई भी हो। और मैं तो जन साहब ये कहता हूं कि अगर 80% रिपोर्ट इस तरह की जाएंगी तो कुछ नहीं होने वाला, नो एक्शन कैन बी टेकन बाय MCA। अगर 2-4 ने लिख दिया तो जरूर नोटिस आ जाएगा। तो हमें करना क्या चाहिए कि जहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, वी शुड रिपोर्ट इट। सर आप रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है देखने का। उनके EOC पास 4 के फॉर्म में कोई अमेंडमेंट नहीं है। नहीं, AOC फॉर्म 4 के अंदर वहां लिखा है कि इफ देयर इज एनी रिजर्वेशन तो आप उसको डिजिटल करें, डिजिटाइज फॉर्म में जाती है क्वालिफिकेशन जन साहब, अच्छा, इसीलिए पकड़ में आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आती। अगर अटैचमेंट जाती तो नहीं आती, ये आ रही डिजिटल फॉर्म में अच्छा, ओके। कि इज देयर एनी क्वालिफिकेशन मॉडिफिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। जनरली सर ये जो ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन और मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें वो जो हमारी हेडिंग होती है जी, और ऑडिट रिपोर्ट की क्वालिफाइड ओपिनियन, और ये जनरली जो हमने देखा है वो ये वहीं से उठाते हैं उसे कि वेदर एनी क्वालिफिकेशन इज देयर और नॉट, वो नीचे तक तो जाते भी नहीं है उसके अंदर। अगर आपने नीचे की छोड़ दी तो फिर तो जो फॉर्म वही भर रहा है, वो देखो वो जो EOC 4 भी वो गलत हो रहा शायद है फिर जहां तो। तक मेरी नॉलेज है कारों के लिए शायद है एक्स्ट्रा, ना सभी में है। सभी के लिए है। हाँ हाँ, यस यस, अच्छा, रिजर्व आई थिंक सर ये भी रिजर्वेशन में काउंट हो जाएगा कि अगर कोई बिल्कुल होगा, एडवर्स रिमार्क में तो कवर हो ही जाएगा ना कि बिल्कुल। वेदर नहीं We नहीं, have to और फिर go. सीधा सीधा है ना, विथ रिगार्ड टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, विद रिगार्ड टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। क्लियर दिया हुआ 143(3)(H में। उसने ये नहीं कहा कि विद रिगार्ड टू मेटेरियलिटी फलाना, कुछ नहीं। और तीसरी आपकी रिपोर्टिंग इसी क्लॉज में नीचे आके होगी जहां पे आप फुल फ्लैज नोट देंगे कि द कंपनी हैज नॉट इंप्लीमेंटेड द ऑडिट ट्रेल ऑब्लिक एडिट लॉग फॉर द फाइनेंशियल ईयर और पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर कराए उसमें लैप्सेस है तो वो आप लिखेंगे, राइट। सर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे थ्रू आउट द ईयर है? ये देखो जैन साहब, जैसे ही हम उसमें एडिट लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने टैली और बिजी के अंदर देखा, वो बताता है कि इस डेट से इंप्लीमेंट किया गया है यहाँ पर। नहीं, बीच में ये बंद है। अगर बीच में बंद है तो वो रिपोर्ट में आ जाएगा। देखो अगर छेड़छाड़ टेम्परिंग नहीं है, सब कुछ आ जाएगा। कितनी बार ऑन ऑफ किया गया वो भी आ जाएगा।
सर मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो देखो सुमित भाई लेनी ही लेनी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ। बट रिटर्न वो तो रिप्रेजेंटेशन जैसा जैसा सुमित भाई आप बना के दोगे ना वैसे ही वो साइन करके दे देगा, उसमें But कुछ that- चेंजेस नहीं करना। देखो डब्ल्यू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट एब्जॉल्व द ऑडिटर्स फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब वो तो नेफ्रा वाला आपका जब कान पकड़ेगा तब समझ में आएगा भाई साहब हमने ऐसे ही साइन करा लिया था। बनाए हम नहीं थे ये और पेपर खास तौर से जहां पर बैंकर्स के लोन है, जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है, उनके लिए बहुत ध्यान रखने वाली बात है। या जो लिस्टेड कंपनी या बड़ी पब्लिक कंपनीज के साथ एसोसिएट है या सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है, आई एम नॉट सेइंग कि छोटी को नहीं देखना, लेकिन देखना तो ओपीसी तक को है। लेकिन ये तीन की तीन क्वालिफिकेशन आपकी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ तो आप लिख दें कि प्रॉपर मेंटेन्ड अकाउंट और हाँ, ऑडिट ट्रेल पे आप रिपोर्टिंग कर दें, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके क्रॉस हो जाएंगे अपने ही क्रॉस ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग। ये इनको हम सुसाइडल अटेम्प्ट्स बोलते हैं। सुसाइडल अटेम्प्ट। तो तीनों जगह आपकी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मैं जो आपका सेकंड पार्ट है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली क्लॉज में, उसके बाद रूल 11G में आप फुल फ्लेज, और 143H का जहां ये वाली लाइन कहीं आती नहीं है, माइंड इट। ये दो 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 क्लॉजेस नई इंसर्ट होगी ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर। एक तो ऑलरेडी है कि वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी, ये तो होती है ना सुमित भाई। इसमें तो आपने लिखता है एक्सेप्ट अवर रिमार्क्स एट क्लॉज नंबर सो एंड सो, अवर ऑब्जर्वेशन या अवर रिजर्वेशन अगेंस्ट क्लॉज नंबर सो एंड सो। बाकी दो आपको इंसर्ट करनी है ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर। और वैसे तो सुमित भाई भी काफी लगे रहते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा मैंने जो इस बार टेम्पलेट बनाई है, जिसमें वेरी मच नीडेड। उन टेम्पलेट्स के अंदर मैंने आशा सर जी, हाँ जी सर। आशा जी अनम्यूट सर। कर दीजिए जया को। हनी अनम्यूट कर सकते हैं जय, यू कैन आस्क। जय, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। यस सर आपने अभी जो आप पीछे डिस्कस कर रहे थे कि ये ऑडिट ट्रेल की जो डिटेल्स है वो 3 पॉइंट्स में जाएगी, तो 143(3)(b, हाँ 143(3)(h, उसके बाद आपने थर्ड पॉइंट कौन सा बताया रूल था? 11 जो है 143J, 143(3)J में नंबर ऑफ क्लॉजेज आर देयर, उसका रूल है 11G। 11G। ठीक है, अगर क्लॉज की ठीक है। बात करोगे तो 143(3) इन ब्रैकेट जे, J, क्लॉज J, उसके ठीक अंदर है, ठीक है। रूल 11G, राइट। रूल 11G ओके, स्पेसिफाइड है, उसमें थैंक लिखा यू। कि एनी अदर मैटर विच में बी स्पेसिफाइड बाय वे ऑफ रूल्स, लॉ के अंदर लिखा हुआ है, तो ठीक है सर, रूल 11G स्पेसिफाई किया हुआ। तो ये तीन ओके। जगह आपकी रिपोर्ट जानी है, और मैंने टेम्पलेट सुमित भाई बनाए हैं इसमें कि जिनमें क्वालिफिकेशंस जानी है उनके लिए भी बनाए, और जिनका क्लीन जाना है उनके लिए भी बनाया। सर शेयर कर दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा कासा वेबसाइट इसमें पे। एक सबसे बड़ी बात ये भी एजेंट साहब देखने वाली, जी आकाश जी। अब रूल हमारा 128 सब सेक्शन 128 सब सेक्शन 6 ये कहती है कि अगर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स नहीं है, देन द होल टाइम डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CMD of the company, CFO of the company, जो भी who is responsible for the maintenance of accounts, he can be imposed with the fine of ₹50,000 to 5 lakh rupees. And thankfully we should be grateful to the ministry कि इन्होंने यहाँ पर पनिशमेंट वाली सेक्शंस मॉडिफाई कर दी थी। पहले यहाँ पनिशमेंट का भी प्रोविजन था, लेकिन अब पनिशमेंट इज नो मोर देयर, सो द मैक्सिमम पेनल्टी इज 5 लाख, मिनिमम पेनल्टी इज 50,000 से 5 लाख तक की पेनल्टी MCA लगा सकता है। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट वी शुड basically take the note of this contingent liability in notes to accounts. Yes. Notes to accounts में under the contingent liabilities, the management should write that the company could not implement the audit trail edit log procedure as per rule 11G and under section so and so, and the consequences of the same is not determinable. Is not determinable, hence not provided for. क्योंकि अगर आपने देखो मैनेजमेंट से भी कन्फेस करा लिया, हमारे साथ काला साहब भी हैं, वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा लगता है सब देख के जब आप लोगों के आशीर्वाद मिलते हैं इस तरह से। तो मैनेजमेंट से भी कन्फेस कराना है थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा ना हो कि कल को क्या नहीं हमने तो इम्प्लीमेंट कर दिया था, ऑडिटर ने पता नहीं कहां से लिख दिया। तो एक तो ये कि जब नहीं इम्प्लीमेंट किया है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 260, आप लिख ले 260 कहता है कि कोई एफिशिएंसी है जिस रिजर्वेशन आप देना चाहते हैं तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग ओनली, वर्बल से काम नहीं चलेगा। इट शुड बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग एंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सेम शुड बी इन द ऑडिट फाइल।
दैट वी हैड कम्युनिकेटेड कि आपने ये इंप्लीमेंट नहीं किया है और आपका हमें रिस्पॉन्स चाहिए, तो रिस्पॉन्स शुड बी देयर, क्योंकि कोई भी चीज आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिख रहे हैं, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट कि आपने ये इंप्लीमेंट नहीं किया और इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस है। और अगर मैनेजमेंट ने अपने कंटिजेंट लायबिलिटी में लिख दिया तो आपने मैनेजमेंट से भी कन्फेस करा लिया कि भाई आपकी ये लायबिलिटी हो सकती है, और उससे क्या होगा इनडायरेक्टली प्रेशर कुड बी देयर काला साहब कि हम अगले साल से उसने इंप्लीमेंट कर दे। अगर हम नहीं करेंगे तो अगले साल भी इंप्लीमेंट नहीं होना, अगले से अगले साल भी नहीं होना। लेकिन वंस दीज काइंड ऑफ प्रेशर्स आर देयर, ऑफ कोर्स द थिंग्स विल बी इंप्लीमेंटेड। और वी ऑल नो कि कितनी कंपनीज है, कितना बड़ा स्टेटस है, कितनी कंपनी चेक हो सकती है, लेकिन एक ऑडिट ट्रेल या एडिट लॉग ऐसा इशू है, जैसे आप कुछ भी कहें, लेकिन जो सॉफ्टवेयर वाले हैं जहां पे अभी इंटरनल इनके कंट्रोल्स वीक है, दे विल स्ट्रेंथन इट इफ दे वांट टू सस्टेन इन द मार्केट। मार्केट में सस्टेनेबिलिटी के लिए उनको ये सब चीजें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, अगर नहीं है तो। और ईआरपी के अंदर तो जिस तरह से चीजें चलती हैं, हम कंट्रोल्स चेक करते ही है, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, एक्सपर्ट का व्यू लेते हैं, तो हर चीज में ये तीन हर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जहां पर ये डेविएशंस हैं, इट हैज टू बी रिपोर्टेड। अब सबसे मेजर पॉइंट ये आता है आशा जी कि हमने सेकेंड पार्ट में तो क्वालिफिकेशन दे दी, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स में, क्या हमारी मेन ऑडिट रिपोर्ट इफेक्ट होगी इससे? वहाँ पे तो सर देखो- अदर चेक्स लगाने पड़ेंगे ना अपने देखो को। अब हाँ क्या मैं कह रही हूँ अदर चेक्स लगा के देखने पड़ेंगे वेदर एनी इम्पैक्ट इज देयर अब और देखना यही सब्सटेंशियल तो मैटेरियलिटी कि हमारी जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है, दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज रिप्रेजेंट टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही हेडिंग आती है ना, रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड हेडिंग आती है रिपोर्ट ऑन द अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स, कि हमसे रेगुलेटर्स ने कुछ क्वेश्चन किए, वी आर जस्ट मियरली आंसरिंग इट, वेदर इट इज बाय वे ऑफ क्वारो, वेदर एक चीज आपने और कही थी जो मेरे माइंड से अभी इसके ऊपर, कोई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, अगर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्ट एप्लीकेबल है आपकी कंपनी पर, तो ये वीकनेस है कंट्रोल्स की, माइंड इट। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी ये क्वालिफिकेशन आएगी, बिकॉज ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वीकनेस है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लॉज आपका आ रहा है, तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इफ यू आर रिपोर्टिंग अंडर कारो ऑर्डर के अंदर भी सर 5 जगह बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्ड यूज किया गया है, और ये सीधा सीधा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अफेक्ट करता है अगर ऑडिट ट्रेल नहीं लगा है। तो कारो के अंदर भी पूछता है कि प्रॉपर बुक्स मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही, पीपीई की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, और अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अंदर ऑडिट ट्रेल नहीं लगा है तो वहां भी रिपोर्ट क्वालिफाई होगी। Am I right? जहां भी वहां बात बुक्स ऑफ अकाउंट्स की करेगा कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रितु जी एम मेकिंग एनी सेंस? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो जहां प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहां ऑडिटर के कान एकदम खड़े हो जाने से रुक जाओ भाई, ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इंप्लीमेंट हो गया रूल 11G। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, पेनल्टी इज ऑन द डायरेक्टर और मैनेजमेंट, नॉट ऑन द कंपनी, सो हाउ कैन वी शो इट एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट? बहुत सोनिया सचदेवा जी का क्वेश्चन हाँ, है। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है बिल्कुल आपका, इसीलिए हमने लिखा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिटर्मिनेबल नहीं है, नहीं तो हम लिखवाते 50,000 से 5 लाख तक है, क्योंकि जब जब ये रेगुलेटर एक्शन लेगा तो कंपनी को नोटिस जरूर जाएगा। दिस इज द प्रैक्टिस कि ओनली केवल डायरेक्टर को नहीं जाएगा, कंपनी विल बी अ पार्टी, राइट? ऋतु जी कोई और क्वेश्चंस भी हैं तो आप हैंड टू हैंड ही ले लीजिए, बिकॉज ले सर ने सकते, बोल ले दिया है सकते कि आप हैंड टू हैंड ही लें। हाँ नहीं मैं तो आप चाहता देख हूँ लीजिएगा। इंटरेक्टिव हो थोड़ा सा, यस सर। अपने इतने 77 लोग जो जुड़े हुए हैं, कुछ एक एक क्वेश्चन भी आएगा तो इट विल बी बेसिकली बेनिफिट फॉर मी, क्योंकि एक आपको क्वेश्चन आ रहा था सर विनोद शर्मा जी का, सर कि जी इन केस ऑफ स्मॉल कंपनीज दे पोस्ट एंट्रीज एट द ईयर एंड ओनली, इज इट कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस? देखो सर, इसमें दो व्यू हैं, कुछ हमारे बड़े प्रोफेशन में एकेडमिक लोग हैं जिनकी मैं बड़ी इज्जत भी करता हूँ, उनका एक व्यू तो ये है कि अगर ईयर एंड पे भी ट्रांजैक्शंस हैं तो वन कैन डू, बट टू माई माइंड इट इज माई पर्सनल ओपिनियन कि यू कैन नॉट से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज देखेंगे सेक्शन 128 की, रीड विथ सेक्शन 143, वो कहता है कि बुक्स शुड बी अवेलेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम,
to the director for inspection any point of time, तो वहां पे अगर आप ईयर एंड पे कर रहे हैं तो प्रॉपर बुक्स मेंटेन आपकी है ही नहीं ना फिर तो। और अगर वॉल्यूमनस ट्रांजैक्शन है फिर तो द थिंग्स हैव गॉन, फिर वही आ जाएगा कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रही है, फिर तो आपके ट्रेल में ही आ जाएगा कि कब समाज को सारी ट्रांजैक्शन हुई है, ऑडिट ट्रेल में ही आ जाएगा आपके। एंड इट विल बी ए क्वेश्चन मार्क फॉर द ऑडिटर्स, अगर उसको इग्नोर कर देता है देन इट इज ए बिग basically trouble for the auditors. Whether audit trail provision are also applicable on, yes, it is applicable on Section 8 company. If the accounts are maintained by part-time accountant at his place in February, then audit trail बिल्कुल applicable। आप अकाउंटेंट के घर पे करें, रेजिडेंस पे करें, उसके ऑफिस पे करें, कहीं थर्ड प्लेस पे करें, सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ करें, यू कैन पुट योर अकाउंट्स अक्रॉस द ग्लोब। आप यूके में अपना सर्वर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दें, स्टिल फिर आपका एक स्टैंडर्ड ऑन लग जाएगा 3402 स्टैंडर्ड ऑन जो आपका है, वो कहता है कि अगर कहीं आपने आउटसोर्सिंग कर रखी है तो फिर आप उससे फीडबैक लेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो आप रिजर्वेशन देंगे अपनी। तो आउटसोर्स भी हो सकता है। अब पार्ट टाइम अकाउंटेंट को आप कह सकते हो आउटसोर्स किया हुआ है, यू कैन से कि आवर अकाउंट्स आर आउटसोर्स्ड। बट अगर अकाउंट आपके आउटसोर्स्ड है देन इट मस्ट बी इंटीमेटेड टू द आरओसी आल्सो, बिकॉज यू आर keeping your accounts at some other place. registered office. बहुत सारी चीजें, मतलब you are not keeping it registered office, you are keeping somewhere else। और अगर आपके यहाँ रखा जा रहा है तो आपके यहाँ से भी हो सकता है। तो एक तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मैंने बता दिया रिजर्वेशन का, एक कारो में भी जहां जहां पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स को आपने ध्यान से देखना है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर क्लॉजेस कोई आ रही है तो वो आपकी क्वालिफाई होंगी, अगर यहाँ आप क्वालिफाई करते हैं तो। अब एक जो मूड क्वेश्चन आया सुमित भाई कि क्या इससे हमारी फर्स्ट पार्ट इफेक्ट होगी, मैन ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसमें थोड़ा आपका व्यू चाहूंगा क्योंकि अब सुमित भाई भी काफी रिसर्च में उसके ऊपर लगे रहते हैं कि क्या आपकी मैन ऑडिट रिपोर्ट इफेक्ट होगी पार्ट ए। बताएं सुमित भाई क्या व्यू बनता है? ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफिकेशन, ऑडिट ट्रेल क्वालिफिकेशन से नहीं, हाँ नीचे वाला तो हमने कर दिया, 3 जगह कर दिया, जैसे आप हम लोग कारों में भी जहां था वहां कर दिया, आईएफसी है तो वहां भी कर दिया। क्या मैन ऑडिट रिपोर्ट हमारी इफेक्ट होगी? सर आई थिंक नो, क्योंकि इसमें फैक्चुअल रिपोर्टिंग नीड टू बी डिस्क्लोज्ड। इसमें देखो और कोई व्यू, आशा जी आपका व्यू? सर इसमें जैसे अभी बोल रही थी, हमें अगर ऑडिट ट्रेल इम्प्लीमेंटेड है, हाँ, then तो मैं नहीं है, मैं कह रहा हूं नहीं है ना, नहीं है उसमें negative में, इम्प्लीमेंटेड, हाँ। देन मैं अपने अदर चेक्स लगाऊंगी और टू ऑडिट ऑल द ट्रांजैक्शंस और जो हम अभी तक करते आए हैं। Yes, अगर yes. उसके बेस पर मुझे कोई भी नेगेटिव या कुछ भी अदर थिंग्स ऐसी नहीं मिल रही हैं, देन मैं उसको क्लीन रिपोर्ट दूंगी। मतलब जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, और फैक्चुअल रिपोर्टिंग मेरी इसकी 11G की रहेगी कि ऑडिट ट्रेल इज नॉट इम्प्लीमेंटेड एंड कुछ ऐसा सब्सटेंशियल। एक कार्ला साहब का व्यू मिल जाए अगर इस पे कुछ, अगर अनम्यूट करके बता सकते हैं। वर्षा जी आप भी बता सकते हैं। मेरे हिसाब कार्ला साहब जी सर काला जी। ओपिनियन अनक्वालिफाइड जानी चाहिए, यानी प्लेन जानी, अनक्वालिफाइड जानी चाहिए, राइट। क्वालिफाइड जानी। वर्षा जी बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। जी श्योर सर दो तीन व्यू और ले लेते हैं। वर्षा हाँ जी बिल्कुल। जी सर, मेरे हिसाब से भी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट ही जानी चाहिए अगर ये हमारे फाइनेंशियल्स को इफेक्ट नहीं कर रही है। तो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है मेजर जिसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है, मटेरियलिटी आ रही है, कोई फ्रॉड नहीं अगर हुआ है तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट ही जानी चाहिए। जय मित्तल जी। सचिन सर आपका कोई सचिन व्यू सिन्हा जी इसमें? भी है आई थिंक। सचिन जी हाँ है। आई थिंक जैन साहब चले गए क्या? जैन साहब नहीं दिख रहे। सचिन सिन्हा जी हैं एज ए ऑडियंस। हाँ, अरे वाह, सिन्हा साहब को तो जरूर कनेक्ट करो भाई। लेकिन सर नमस्कार। नमस्कार सचिन जी, योर ओवर व्यू ऑन दिस। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक आज डिस्कस हो रहा है मैं डायरेक्टली इसमें डील नहीं करता। जी बट जो आपने अभी बताया है अब तो मैं बिल्कुल भी डील नहीं करूंगा। क्योंकि एक बार तो सीआईटी अपील और आईटीएटी हाईकोर्ट को संभालना आसान है, बट ये नाफरा तो आई डोंट नो कैसे हैंडल करेंगे। दूसरी चीज है, जितने सारे आपने अभी रूल्स बताए सर, रूल 11G और ये सब, जी एक बार टू बी वेरी फ्रैंक मुझे एक बार देखना पड़ेगा या मुझे ऑडिट टीम से डिस्कस करना पड़ेगा कि वो लोग इसको कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी बट ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑडिट नहीं करते हैं, तो ये कंप्लायंसेस मुझे एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन सर अभी तक जो आपने मुझे बताया, जो भी डिस्कस अभी तक हुआ और बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी क्वेश्चन आया,
तो ये समझ में आ गया कि इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन और बहुत ज्यादा डिलिब्रेशन का रिक्वायरमेंट है, यस यस क्योंकि बहुत चीज ऐसा है जो अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं, बहुत सारे केसेस में नाफरा ने यस यस सीए को एलिगेट कर दिया। तो सीए क्या हर बार सीए की गलती है, या वो कहीं ना कहीं वो बलि का बकरा बन रहा है, मतलब स्केपगोट की तरह उसको यूज किया जा रहा है, आई डोंट नो। तो यही है सर मेरा तो इसमें भी। ठीक है, थैंक यू सर सर। आप ही अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो आई थिंक लास्ट ईयर तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में तो किसी ने भी इसको नहीं किया था, सबने मिड में ही किया है। जैसे मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, किसी ने मई में नहीं, किया सर का है। क्वेश्चन स्टेट अभी ये है कि नहीं किया तो नहीं उस है पर तो हमें क्या करना है? हाँ, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं नीचे वाला पार्ट, तो क्या ऊपर वाले, और वर्षा जी ने काफी कुछ बिल्कुल सही जवाब दिया देखो। और आप सभी का भी जवाब ठीक है कि देखो हम ये देखेंगे कि क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैटेरियली मिसस्टेटेड है इसकी वजह से। आपको कहीं लग रहा है कि टेम्परिंग हुई है, ऑडिट ट्रेल नोइंगली नहीं लगाया गया, किसी फ्रॉड को बचाने के लिए लगाया गया, कोई एडजस्टमेंट को बचाने के लिए किया गया, या टेम्परिंग की गई। अगर देखो टेम्परिंग का केस है, ऑडिट ट्रेल टेम्परिंग, जैसे जैन साहब ने डिस्कस किया था एट द आउटसेट, टेम्परिंग है तो इट इज ए सीरियस इशू। क्योंकि टेम्परिंग आप ये नहीं कह सकते कि एरर के लिए किया गया। टेम्परिंग मीन्स कि आपकी विलफुल कोई उसके अंदर फ्रॉडलेंट आपकी कोई इंटेंशन थी। और अगर कोई इस तरह की चीज एस्टेब्लिश होती है, देन ऑफ कोर्स द ऑडिट फर्स्ट पार्ट आपका रिपोर्ट आ जाएगा। लेकिन अगर, या हम इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि अगर फ्रॉडलेंट कोई प्रैक्टिस हो गई है, तो आपकी फर्स्ट पार्ट भी इफेक्ट हो जाएगा, उसके नेचर को देखते हुए। बेशक क्वांटम आपका ज्यादा ना हो, लेकिन नेचर को देखते हुए। लेकिन अगर कहीं एरर्स हैं और हम उसको रूल आउट कर सकते हैं कि इससे मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन ऑफ कोर्स योर फर्स्ट पार्ट कुड बी क्लीन ओपिनियन। तो उसमें आपकी ओपिनियन डिफरेंट नहीं होगी, वो जैसे ओपिनियन आपकी जा रही है उसी तरह से जाएगी। और टू माई माइंड जो एसएमसीज हैं या बहुत छोटी कंपनीज हैं जिन्होंने इस बार पार्ट ऑफ द ईयर इंप्लीमेंट किया या नहीं कर पाए, और उसमें अगर आपको सब कुछ सीधा सीधा मिलता है, तो टू माई माइंड द रिपोर्ट फर्स्ट पार्ट कैन बी क्लीन। बट उसके लिए हमारे ऊपर उल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेगुलेटर्स कैन आस्क अस कि भाई ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो आपने कैसे इंश्योर किया कि ट्रांजैक्शंस टाइमली रिकॉर्ड हुई थी, टेम्परिंग नहीं हुई थी, मॉडिफिकेशंस उनकी जो हुई वो ठीक से हुई। अगर उसके अंदर पता लगा 700 ट्रांजैक्शन है और 300 ट्रांजैक्शंस डाउटफुल है या कुछ और है, अल्टरेशन है सर, उनका पर्पज है कि अल्टरेशन है, ऑल्ट्रेशन है, मॉडिफिकेशंस है, या जैसे आपने कहा कि हमने तो 15 मार्च से 30 मार्च के बीच में ट्रांजैक्शन की हुई है, then the audit trail comes into picture. Basically audit trail लगाया ही इसीलिए गया कि ट्रांसपेरेंसी आए, आपकी अकाउंटेबिलिटी। देखो 3 पर्पस थे उसके, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप उसका देखें तो उन्होंने कहा कि 3 चीजों के लिए वो एड्रेस करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कि किसकी वजह से हुआ, किस यूजर ने किया ये, क्योंकि जहां पर ईआरपी एनवायरनमेंट है वहां बिना यूजर के कुछ नहीं हो सकता। इवन टैली में भी अब तो, या बीजी में भी यूजर्स अलाउड है। हाँ, एक चीज सुमित भाई बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया, मैं बताना चाहता हूं कि अगर यूजर चेंज किया गया है तो दिस इज नॉट ए ट्रांजैक्शन। चेंज ऑफ यूजर इज नॉट ए ट्रांजैक्शन। तो यहां पर हमें जो रिपोर्टिंग करनी है या चेक करनी है, वो हमें देखनी है ट्रांजैक्शंस की। बेसिकली लेजर्स इफेक्ट हो रहे, लेजर चेंज किए गए, ग्रुप चेंज किए गए, ट्रांजैक्शन चेंज की गई, वो तो देखनी है। लेकिन यूजर चेंज किया गया तो उसके, वो क्यों किया गया, वो हमारे अदर कोई रीजन से हो सकता है, लेकिन वो एज सच इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन, राइट। तो उस, अच्छा एक बात और इसमें है सर, कि अगर किसी ने पूछा कि एक्सेल पे अकाउंटिंग हो रही है, पेरोल एक्सेल पे बन रहा है, तो क्या ये जो एक्सेल पे पेरोल बन रहा है, क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? अगर पेरोल एक्सेल पे बन रहा है तो क्या ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर माना जाएगा? क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे लगना है इसको। तो इसमें इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया अपने इंप्लीमेंटेशन गाइडेंस में कि अगर वो जो एक्सेल की आपकी वर्किंग है, इट इज डायरेक्टली पुश्ड अप इनटू द सिस्टम। सॉफ्टवेयर से आजकल डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं चीजों। यस, इफ इट इज डायरेक्टली इंपोर्टेड इनटू योर बिजी और इनटू योर टैली और एनी अदर सॉफ्टवेयर, देन इट इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो वो एक्सेल की वर्किंग आपकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ट्रीट होगी। लेकिन अगर आप उसको मैनुअली जाके फीड करते हो, देन दिस इज स्टैंड अलोन कैलकुलेशन ओनली एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये भी है कि क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है।
और मैं तो आपसे एट द आउटसेट सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डोंट टेक रिस्क दिस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 24, क्योंकि 80% कंपनीज ने तो नहीं लगाया होगा फुल ईयर के लिए। और अगर 80% सिन्हा साहब भी इसको अप्रिशिएट करेंगे कि अगर 80% लोग इसकी वायलेशंस को लिखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, द स्काई विल नॉट फॉल, क्योंकि द लॉ विच इज वाइडली वायलेटेड इज नॉट द लॉ। कहते हैं स्मोकिंग एट द पब्लिक प्लेस इज एन ऑफेंस, और सारे लोग स्मोकिंग करते हैं पब्लिक प्लेस पे, तो कितनों को प्रोसिक्यूट कर लोगे आप, कितनों को कर लोगे? तो लाइक वाइज, लेकिन अगर कुछ लोगों ने कर दिया, 2-4 सिलेक्टेड लोगों ने, then the notice could be served on those people. जबकि है क्या कि auditors are putting themselves into trouble if the audit trail is not there. We should write. उसमें there is no harm. उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, एक चीज आप एक लॉ लेके आए एंड बीइंग द, आप लिख भी सकते हो कि बीइंग द, भैया अगर कहीं एस्केलेट भी करना है इस इशू को, मिनिस्ट्री लेवल पे भी करना है कि एमएसएमई को थोड़ा तो रिलैक्सेशन दोगे आप। हाँ, जो कंपनी ईआरपी एनवायरनमेंट में दे ऑलरेडी ऑडिट ट्रेल, ऐसा मुझे आज तक ऐसी ईआरपी की कोई कंपनी नहीं मिली जिसके अंदर ऑडिट, क्योंकि उनको अपने इंटरनल कंट्रोल ठीक रखने हैं भाई। अगर वहां पर ये चीजें नहीं हुई तो वो इंटरनल कंट्रोल ठीक नहीं रख पाएंगे। तो ईआरपी में तो ऑलरेडी सब इम्प्लीमेंटेड है। ये टाइम स्टैंपिंग इज ऑलवेज देयर, आज से नहीं है। टाइम जब से ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शुरू हुई, अकाउंटिंग इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग शुरू हुई, सब तभी से है। यूजर्स आर देयर, एवरीथिंग इज डिफाइंड। बट जो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर हैं, बिजी है, जोहो है, कोई और सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ऑडिट ट्रेल कब से इंप्लीमेंट हुआ ये जरूर देखना चाहिए। तो आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हो तो प्लीज कम फॉरवर्ड। एक मेरी और रिक्वेस्ट है, मैंने एक रिक्वेस्ट तो नफरा ऑर्डर पढ़ने की है, और सिन्हा साहब तो हमारे बड़े प्रोलिफिक स्पीकर भी हैं और ग्रेट एकेडमिशियन है। मैं आपसे भी सिन्हा साहब कहूंगा, जब आप ऑर्डर नफरा का पढ़ोगे ना तो आप खुद कहोगे नहीं, दी ऑडिटर्स वर रिस्पॉन्सिबल। मतलब ऑर्डर्स इतना बढ़िया लिखे हुए हैं कि सर पढ़ने का दिल करता है। मतलब स्पीकिंग ऑर्डर्स है, एक एक चीज को उन्होंने हाईलाइट किया है कि ये लैप्सेस थे, ये स्टैंडर्ड से हमारे। और अच्छा, छोटी मोटी चीज नहीं पकड़ रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं बड़े बड़े मटेरियल अमाउंट। जैसे ये रिलायंस कॉमर्शियल का एक ऑडिटर ने लिख दिया फ्रॉड है, दूसरा ऑडिटर कह रहा फ्रॉड नहीं है। मतलब ही इज गोइंग विद द मैनेजमेंट, और वो भी मतलब आई एम नॉट एडवोकेटिंग, एक सीजन्ड ऑडिटर लिख रहा है और वो रिपोर्ट कर रहा है एमसीए के अंदर, आप उसको इग्नोर करके ईओएम पैराग्राफ में लेके आ रहे हो, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। तो मतलब दीज थिंग। और एक और रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से है जो ऑडिट में है, एक इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशन है एफआरआरबी का, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सेंसिटाइज करने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड का एक वॉल्यूम है 3। आप अगर गूगल पे लिखेंगे एफआरआरबी वॉल्यूम 3, काइंडली गो थ्रू इट, आई ओपनर है सर। एक नफरा का ऑर्डर और एक अभी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की भी रिपोर्ट आई है। बट मैं तो ये कहता हूँ उतना सब देखने की जरूरत नहीं, इतना टाइम भी नहीं हमारे पास। नफरा का एक ऑर्डर पढ़ लेंगे ना, सारा समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का एक एक पैराग्राफ जिस तरह से वो अनफोल्ड करते हैं, मतलब दैट इज वर्थ लर्निंग। सिन्हा साहब, पहले मैं मानता था कि ऑडिट रिपोर्ट में मैंने बड़ी अच्छी वो कर ली है, लेकिन जब से मैंने नफरा के ऑर्डर पढ़ने शुरू किए, then I found myself at the learning stage of auditing, standards on auditing. सर आप ऐसा बोलेंगे तो हम लोग को तो सच में डिमोटिवेशन हो रहा है। so wisely they are, मतलब they are interpreting रीडिंग करना एक टेंशन हो जाएगा। नहीं, they are interpreting it। ये आपकी इंटेंशन, आप देखो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में ये नहीं थी, ये थी। तो हम उस स्टेज पे चल रहे हैं। ऑडिट इज जस्ट लाइक कि जितना पढ़ोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा टेंशन है। नहीं देखो, बट आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं पढ़ोगे। हाँ, बट अल्टीमेट एंड में हमें कहते हैं ना कि पढ़ना तो पड़ेगा, तभी हमारा। देखो ऑडिटर प्रोफेशन में अगर रेलेवेंट रहना है और अपने आप को सेफ, क्योंकि आज आप ये नहीं कह सकते कि आप लिस्टेड कंपनी का नहीं कर रहे तो आप सेफ है। यू कैन नॉट से, वो एनीबडी कैन कम इन बिटवीन। एक डायरेक्टर के आपस में झगड़े हो जाते हैं, वो आपको कोर्ट ले जाता है, वो एक दूसरे पे एलिगेशन। इन वन ऑफ द केस वन ऑफ माई फ्रेंड फाउंड सिन्हा साहब की, उसके 3 डायरेक्टर में एक को उसने रिजाइन करा दिया, और वो रिजाइन आप हम सबको मालूम है कि बैंक की तरीके से हो गया होगा। उसने 2 साल बाद केस डाला उसके अगेंस्ट और ऑडिटर्स के अगेंस्ट, और उसने ये बताया कि आपने कितनी, ऑडिटर से क्या पूछा है सुमित भाई,
आपने कितनी एजीएम अटेंड करी जब से कंपनी बनी? हाउ मेनी एजीएम you or your partner have attended? Such kind of questions have been posed by the expelled director कि आप बताओ आप कितनी एजीएम में आए थे? हाउ कुड यू फाइंड आउट कि मैंने जेन्युइनली रिजाइन कर दिया है? हैव यू कंफर्म्ड एनी फ्रॉम एनी अदर independent source? My signature has been forced by that existing directors. तो उस केस में उसने ऑडिटर्स को 4 क्वेश्चन, सबसे बड़ा तो उसने ये कि आपने कितनी एजीएम अटेंड की आप ये बता दो। तो जब इस तरह की सिचुएशन सोसाइटी में आ रही है तो वी हैव टू टेक द एक्स्ट्रा कॉशन ऑल्सो। जहां डायरेक्टर्स की मूवमेंट हो रही है, कुछ इस तरह की अनयूजुअल चीजें हो रही है ना, वी शुड टेक ईच एंड एवरी थिंग सीरियसली। सर एक डाउट है, लाइक 1 जून को हमारे पास कोई बिल आया विच इज डेटेड ऑफ मई, तो हम उसकी एंट्री मई में कर रहे हैं तो उसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज पास नहीं इंदरजीत जी, क्यों कर रहे हैं हम मई में क्यों करना चाहते हैं? जीएसटी के पर्पज से या किसी और पर्पज से? जीएसटी प्लस हमारा हमारा रूटीन ऐसा ही होता है कि हमारे पास जैसे ही बिल आते हैं, जैसे अगर जून में बिल आता है 1 या 2 को, तो हम उसको बुक कर, वो डेटेड होता है मई का, तो हम उसको बुक करते हैं 31 मई को, अकॉर्डिंगली उसकी पेमेंट हम रिलीज करते हैं जून में। इसका तो वो मतलब देखो सिस्टम बना सबसे हुआ बड़ी है। चीज है कि एक तो कुछ कहीं ना कहीं आपके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वीक है, आपको ये मानना पड़ेगा। और अगर ये साइजेबल कंपनी है तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से आज के टाइम में। और अगर बहुत छोटी कंपनी है तो आप कर लेते हो तो उसका कोई ऐसा ट्रैक नहीं होगा, बट अगर ट्रैकिंग है, इसकी ट्रैकिंग है तो ये बैकडेटिंग है कि पता लगा आपका गेट पे रजिस्टर रखा हुआ, वहां एंट्री होके आ रही है, उसमें 4 तरह की स्टैंप लग रही है, समझ रहे हैं? उसके बाद अप्रूवल्स हो रही है रेलिवेंट डिग्निटरीज से, और उसके बाद अगर आप बैकडेट में एंट्री डाल लें, दैट इज ए क्लियर केस ऑफ बैकडेटेड। वन मोर थिंग, जैसे अगर हमने किसी एंट्री को बुक किया, फॉर एग्जांपल मई में बुक किया हमने उसको, ऑलरेडी मई की डेट पे, करंट डेट पे ही बुक करा हमने उसको, और उसमें बाद में पता चला कि टीडीएस भी था उसमें, फिर हमने उसको मॉडिफाई करके उसमें टीडीएस की एंट्री को ऑल्टर किया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो उनको रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है ना? नहीं, आप उस एंट्री को मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली एरर्स कुड बी रेक्टिफाइड, ओके एरर्स कुड बी रेक्टिफाइड, देयर नो प्रॉब्लम। आप उसको जनरल एंट्री से रिवर्स कर सकते हैं, आप उसी एंट्री को चेंज कर सकते हैं, एंड यू कैन शो द ऑडिटर की एडिट लॉग आप देख लो, इसके अंदर ये हुआ था, इस तरह से हमने करेक्शन किया हुआ है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। थैंक यू। आई थिंक सर इसमें अगर क्वेश्चन कुछ मेरे जो समझ में आया है इंद्रजीत जी का, शायद वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास मई में बिल आया, बाद में पता लगा इस पे टीडीएस एप्लीकेबल था, अब क्योंकि मई में टीडीएस नहीं किया तो मैंने उस एंट्री को वहां से उठा के जून में डाल दिया, सो दैट कि मेरे टीडीएस का इंटरेस्ट एंड ऑल सेव हो जाए। आशा जी, इसमें 2 चीजें देखनी पड़ेंगी कि देखो, इनवाइस एंड द सर्विसेज और गुड्स शुड ट्रेवल टुगेदर। हाँ, वो सब तो मई में हो गया, जस्ट बिकॉज कि मेरा टीडीएस का कंप्लायंस नहीं हुआ था, मैंने अगर उसको शिफ्ट कर दिया मई जून में। आपके गुड्स रिसीव हो गए, गुड्स आपके अप्रूव हो गए हैं, हाँ, वो तो सब मई में हो गए, ऑफ कोर्स यू कैन अकाउंट फॉर इट, बट ऐसा ना हो कि गुड्स आपके नहीं आए या सर्विसेज आपकी पूरी रेंडर नहीं हुई और इनवाइस पहले आ गया, तो जीएसटी भी अलाउ नहीं करता मुझे। हाँ, तो उसको आप कर सकते हो, लेकिन उस तरह से आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो जीएसटी बेसिकली गुड्स और सर्विसेज टू ट्रैवल विद द इनवाइसेस, बिल्कुल क्लियर। उसमें लायबिलिटी अगर आपकी है तो है, लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो गई, यू हैव टू अकाउंट फॉर इट। नहीं, जस्ट टू डेफर द टीडीएस लायबिलिटी और नॉट डेफर, बट बिकॉज आई फॉरगेट टू टीडीएस डू टीडीएस इन मई, आई शिफ्टेड इट टू जून। सर एक क्वेश्चन सर जी, सचिन जी का बिल सर 10 लाख रुपए का मेरे पास आ गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक सर्विसेज नहीं दी हुई हैं, एडवांस मांगा है आपसे, एडवांस में बिल आ गया सर मेरे पास। अब वो बिल भी बुक हो गया, अब सर्विसेज तो आई नहीं ना, मैंने पेमेंट करी, मैंने कहा भाई ये तो एंट्री गलत है, अब मॉडिफाई करवा दी मैंने किसी क्लाइंट की। कर सकते हैं ना सर? हाँ, ये तो देखो जेन्युइन मिस्टेक क्या है तुम्हारा है जैन साहब, जेन्युइन मिस्टेक्स है ये तो। हाँ, ये बताना चाहते हैं कि अब 10 लाख का बिल आया इसलिए एडवांस में पैसा आया है जिसकी हमने अभी तक कोई सर्विसेज नहीं दी है, ऐसा चलता रहता है। हाँ, जेन्युइन देखो, मिस्टेक्स कैन बी रेक्टिफाइड, सीधी सी बात, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक आप कालरा एक सर वाउचर का को 4 बार क्वेश्चन चेंज है, करो, नो प्रॉब्लम। सर कालरा सर का क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, अभी जो हमने पेरोल वाली बात की थी, सिमिलर टू दैट, व्हाट अबाउट द एफए रजिस्टर मेंटेन्ड इन एक्सेल? आई थिंक सिमिलर। एफए रजिस्टर अगर स्टैंड एलोन है अपने आप में, अगर उससे डायरेक्ट पुश नहीं हो रहा एंट्री, तो टू माय माइंड दैट इज नॉट द बुक पार्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो है वो, दैट इज पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है।
That is not an accounting software. That is basically a standalone calculation. आप मेमोरेंडम रजिस्टर कह सकते हो, कुछ कह सकते हो, लेकिन अगर उससे ट्रांजेक्शन आपकी पुश हो रही हो, Fixed asset register, it will be called, sir. Fixed asset register, books of account will be called. बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, लेकिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। Accounting software में नहीं है, right? दोनों ऑडिट ट्रेल के लिए वो उसमें नहीं बुक्स ऑफ आएगा। अकाउंट्स तो है, लेकिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए ऑडिट ट्रेल नहीं लगेगा। लेकिन Part अगर of the- आपका उस फिर रजिस्टर डायरेक्ट पुश कर रहे हो आप सिस्टम को किसी तरह से, जो कि आजकल सारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कर देते हैं, तो वो आपका आ जाएगा इस तरह से। जी मैम। सर अगर हमने एडवांस दे दिया डायरेक्टर्स को, मतलब अगर हम ईयर एंड पे दिख रहा है कि कुछ ज्यादा पैसा गया तो हम उसे चेक के थ्रू वापस ले सकते हैं, अलाउड है? नेहा जी कुछ मिस हो गया बीच में, फिर से आप क्वेरी बताना अपनी। सर अगर हमने डायरेक्टर्स को जैसे रेम्यूनरेशन देते हैं जी, तो अगर हमें ईयर एंड में पता चल रहा होगा रेम्यूनरेशन चेक करके कि कुछ हमने ज्यादा पे कर दिया कंपनी की तरफ से रेम्यूनरेशन, तो हम उसे चेक में वापस ले सकते हैं? पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑडिट की करनी पड़ेगी कि क्या ग्राउंड थी, बोर्ड रेजोल्यूशन क्या पास हुआ था, किस तरह से दिया गया, बैंक में ट्रांजैक्शन किस तरह से आई। अगर बैंक से भी ट्रांजैक्शन निकलती रही है, खास तौर से एक तो ये है कि बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं निकली तो आप स्टैंड ले सकते हैं। अगर बैंक से ट्रांजैक्शन हो गई है तो फिर इट इज ए क्वेश्चन मार्क बेसिकली। सर ट्रांजैक्शंस तो सारी बैंक से ही है, स्टेटमेंट के थ्रू है। अगर पेमेंट्स हो गई है देन फिर यही तो ऑडिट ट्रेल पकड़ेगा, और क्या पकड़ेगा। ओके, we should avoid all such kind of things. ओके, थैंक यू सर। आशा जी, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चंस हैं आए हुए। हाँ जी। पंकज आहूजा जी का क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रीट एडजस्टमेंट एंट्रीज एंटर्ड एट द टाइम ऑफ ऑडिट इन अगस्त और सितंबर और देखिए पंकज जी, इसमें 31 दो तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती है। एक हो सकती है आपकी प्रोविजनिंग से रिलेटेड, एक ट्रांजेक्शन आपकी हो सकती है कोई क्रिस्टलाइज्ड लायबिलिटी थी, कुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर टाइमली, उसकी वजह से आप करा रहे हैं। कोई आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, कुछ और थे, तो ये बेसिकली ट्रांजेक्शंस हैं टू बेसिक मेक द करेक्शंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। ये एडजस्टमेंट नहीं है, रेक्टिफिकेशंस ऑफ ट्रांजेक्शंस आप कह सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन कराई गई। लेकिन अगर अदर देन रेक्टिफिकेशन कोई है देन फिर एक क्वेश्चन मार्क अगेन, it cannot be. Ashay, one query posted on chat box by Manoj Agrawal ji, WhatsApp पे शेयर की थी। हाँ, Apart from there, उससे पहले एक क्वेरी ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी की क्वेरी है, इज देयर एनी स्पेसिफिक ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट नीड टू बी अटैच्ड विद द मेन ऑडिट रिपोर्ट? No, as there is no format no, not at all. It should be basically part of our audit working file. main audit report आपको ऑडिट फाइल में आपके होना चाहिए कि आपने इस ऑडिट ट्रेल वाले ऑब्जेक्ट को कैसे चेक किया है। सर एक क्वेश्चन हमारे पास व्हाट्सएप पे आया था, अगर आप उसको रिप्लाई कर दें। बताइए। इट इज सिंस बिगिनिंग ऑफ कंपनी एक्ट 2013 दिस ईयर 10 ईयर हो गए उसको, 2 टर्म हो गए ऑडिटर के, कंप्लीटेड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एनबीएफसी इन 24। एनी स्पेसिफिक अटेंशन रिक्वायर्ड और नॉट? मतलब 2 कंप्लीट हो गए टर्म, 5-5 साल के, 10 साल। अब आप इसमें सबसे पहली चीज तो बस ये देख लें कि आपका रोटेशन वाला कंपनी तो नहीं है। एनबीएफसी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिख रहे हैं। उससे पता नहीं, क्वेश्चन से पता नहीं लग रहा। प्राइवेट कंपनी में भी रोटेशन एप्लीकेबल हो जाता है अगर लार्ज साइज कंपनी, अदर देन स्मॉल में, लार्ज साइज अगर रोटेशन आपका रिक्वायर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यूइंग ऑडिटर्स हो सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। और इंडिपेंडेंस को आपने हर बार एंश्योर करना है। दैट इज बेसिकली इंडिपेंडेंस इज एनुअल एक्सरसाइज। कुछ लोग सोचते हैं ना कि एक बार कर लिया, नो इट इज नॉट सो, इट हैज टू बी एंश्योर्ड एवरी ईयर। तो इंडिपेंडेंस एंश्योर करते हुए आप यू कैन कंटिन्यू इफ यू आर नॉट अंडर द रोटेशन ऑफ द ऑडिटर्स कैटेगरी। सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एंगेजमेंट पार्टनर जो होता है दैट शुड बी रोटेटेड और नॉट फॉर एनी कंपनी, और 5 year 10 year certain limits is there? ऐसा मतलब एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट करना है, ऐसा मेरे ख्याल से कहीं एसक्यूसी प्राइवेट कंपनी में तो नहीं, लेकिन लिस्टेड में आई थिंक लिमिट है ना। इसमें एलओडीआर में अगर कोई रिक्वायरमेंट है दैट हैज टू बी सीन, अदरवाइज I think SQC1 talks about rotation of engagement partner for listed company. We have to see it. Here I am not recalling, but SQC1 talks about. Anyway,
we think इंद्रजीत जी का एक क्वेश्चन आ रहा है, इज दिस जॉब ऑफ ऑडिटर टू ट्रैक द ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट और इट्स जॉब ऑफ कंपनी एम्प्लॉय टू प्रोवाइड द सेम टू द ऑडिटर? नहीं, देखो, आप इम्प्लीमेंट कंपनी ने करना है और ऑडिट आपने करना है कि वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, और जिस तरह से जो आपसे 5 क्वेश्चन उन्होंने पोज किए हैं वो हुए या नहीं हुए, उसको सब्सटेंटिएट करना, उसके एविडेंसेस कलेक्ट करना, एंड उस जो ऑडिट एविडेंसेस आप उससे रिलेटेड आपको फाइल में लगाने हैं वो सब आपके पास होने चाहिए, along with the representation letter. मैनेजमेंट से मांगना तो पड़ेगा ही उसे कम से कम, तभी Yes, क्योंकि आपके बिल्कुल, ऑडिट office- डॉक्यूमेंटेशन में तभी कंप्लीट होगी। ऑफिशियली लेना पड़ेगा आपको। Yes. Next is please confirm which is the third place in the audit report other than 143(3) clause B and 11G where we need to put the audit trail point. हाँ बिल्कुल, This is ये clause ये H, आपकी क्लॉज है I 143(3) क्लॉज H, जो कि अभी ऑडिट रिपोर्ट में आपको नहीं होगी क्योंकि आपकी क्लीन ओपिनियन जा रही है। तो क्लॉज H ये कहती है कि अगर कोई रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क्स ऑडिटर के किसी भी इशू से रिलेटेड है, देन इट हैज टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली ऑल्सो। तो उस क्लॉज में आपको एक इंसर्ट करके एक क्लॉज और ये वाली क्लॉज डालनी पड़ेगी। और वैसे मैं आप लोगों के साथ टेम्पलेट भी शेयर कर दूंगा जो मैंने बनाए हैं, विद द रिक्वेस्ट कि अगर आप उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो you should do it, and it will be basically value addition for all of us. और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए सर जो टेम्पलेट हमें देंगे वो कासा की वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे हम, एंड उसका जो लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक मैंने शेयर किया है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट कि टाइमली मिल जाए आपको सारे टेम्पलेट्स बिफोर इशूइंग एनी ऑडिट रिपोर्ट। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। सर प्लीज शेयर कर दीजिएगा, मैं सभी लोगों को Sure. वेबसाइट के थ्रू लिंक शेयर कर दूंगा। Sure. आशा जी और कोई करिए, conclude करें। If there is any other question, we can take in another 30 seconds. We can Yes, wait for query. Sure, recording एक क्वेरी है, अगर सपोज लिस्टेड कंपनी की हमने इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट क्लीन भेज दी, अभी तक खाली खाली रिमार्क लिख के भेजा है कि भाई ऑडिट ट्रेल उन्होंने पार्ट ऑफ द ईयर में 6 मंथ्स में शुरू किया है, अब वो मीटिंग हो गई, बोर्ड मीटिंग हो गई, अप्रूव भी हो गई है, अब जी। उसको जैसे आप बता रहे हैं कि अगर भाई उसने सितंबर में, जैसे एक कंपनी है मेरी क्लाइंट है, उसने सितंबर में ऑडिट ट्रेल स्टार्ट किया था 4 सितंबर, अब उसको मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ? मेरी तो हो गई वो बोर्ड मीटिंग, तो मैंने तो उसको खाली एक रिमार्क में लिख के उनको अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में एक रिमार्क में लिख के भेज दिया 11G के उसमें कि ऑडिट ट्रेल हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 4 सितंबर। अच्छा, इसमें आपने मतलब 143(3)(b) और H की क्लॉज आपकी छूट गई है, यू वांट टू से लाइक दिस? हाँ, तो अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? ये एजीएम तो आ रही है, लेकिन अब इट इज ए केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी, तो अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज नहीं हुए तो एक बार LODR में आप देख लें कि सेबी के अंदर क्या कैन बी इशू द रिवाइज ऑडिट ओपिनियन, अगर है तो हम वी कैन डू इट। ओके, क्योंकि अच्छा फाइनेंशियल ठीक है। स्टेटमेंट्स आपके रिवीजन नहीं हो रहे और केवल रिपोर्ट आपकी रिवीजन हो रही है, तो हाँ, रिवाइज खाली रिपोर्ट रिवाइज करनी है, तो रिपोर्ट रिवाइज तो वो कैन। LODR में चेक कर ले। यस कि हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अच्छा ठीक वैसे है, आप उन ठीक है, ऑडिटर से तो ओके। अच्छे हैं जो कह रहे हैं कि 1/4/24 से इम्प्लीमेंट होगा लिस्टेड कंपनी में। हाँ नहीं, उनका कौन सी कंपनी में है सर ये रिपोर्टेड I ऐसे? will share. I just don't want to name it क्योंकि छोटी अच्छा। कंपनी है किसी का। नहीं, ओके उन्होंने तो ओके। सितंबर से 4 सितंबर से स्टार्ट कर दिया था, एंड मैंने मतलब सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए, ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है, कोई टेम्परिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बस खाली ये है क्योंकि ऑडिट ट्रेल में वो मेंशन होकर आता है 4 सितंबर से है, सर इसलिए मैंने वो एक रिपोर्ट में मेंशन कर दिया है। सर एक क्वेरी और आई है अभी चैट जी। बॉक्स में। If in case of private limited small company, audit trail was implemented for part of the year by buying new tally software and also the trail was on and off due to training of staff, but there is no effect of mortality, how do we report it? तो ये तीनों क्लॉजेज ये में आपको ऑलरेडी देना, डिस्कस्ड है। तीनों क्लॉजेज में आपको देना पड़ेगा, हम्म, ये रीजनिंग देनी पड़ेगी। और ठीक है, आप नीचे वाली रिपोर्ट में तो आपको तीनों क्लॉजेज में देना ही पड़ेगा। तो प्रोफेसर आई वुड से कि ये बहुत ही लेंथ में डिस्कशन हुआ है, and you can again watch as many number of times you want on the CASA YouTube channel, इसको पोस्ट कर देंगे। Sir, what should be the exact or likely wording of the contingent liability footnote? ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कासा के साथ। Indrajit ji, sir will share the exact language and टेम्पलेट सारे जो 3-4 टेम्पलेट definitely sir is sharing so many since so many years every year templates, qualification कब करनी है, modified कब करनी है, so different Fine. methods.
Thank you. So wonderful discussion with the sir, all participants, and I think it's time to conclude. Yes, yes. Varsha ji, I request I give you opportunity to conclude by giving vote of thanks. वर्षा जी हैं? Yes. हाँ, वर्षा जी है. Yes. नमस्कार सभी को। आज का सेमिनार बहुत नॉलेजेबल रहा हमारे लिए, और आई होप सो कि ऐसे ही आप करते रहें आगे भी। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, मिस आशा एंड मिस्टर and all the speakers, Gopal ji, and all the participants. Thank you so much for attending the seminar. Thank you वर्षा जी, and thank you CM जैन साहब. जैन साहब गायब हो गए थे बीच में आप. नहीं सर आ गए. Thank you आशा. सर म्यूट पर हो आप, जैन सर. So जैन साहब के कंक्लूडिंग रिमार्क्स जरूर चाहिए. जैन साहब आप भी कंक्लूडिंग रिमार्क प्लीज शेयर करें. वर्षा जी ने दे दिए हैं रिमार्क और बहुत बढ़िया सर ने गाइडेंस दिया. गोपाल सर, वर्षा जी जो फियर फैक्टर था ना दिमाग में, आज गाइडेंस, क्योंकि आज सेमिनार था तो मैंने गाइडेंस नोट भी पढ़ लिया और इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस नोट भी पढ़ लिया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया. अभी तक मुझे यही नहीं मालूम था कि ये रिपोर्ट कहाँ करना है सही में. नहीं ठीक. आज मुझे डेट पे पता चला कि उस दिन सुमित से डिस्कशन हो रहा था, तो सुमित को मैं खींच रहा था इस बात पे कि कैसे हम चेक करेंगे. सुमित ने बोला मुझे लिटरली प्रैक्टिकली नहीं मालूम, मुझे तो थ्योरेटिकल मालूम है, थ्योरेटिकल पूछ सकता है. तभी सर ये डिस्कशन प्लान हो गया था मेरा और जैन साहब का कि हम दोनों बैठेंगे और गोपाल सर को एक बार सुनेंगे और फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे कि क्या होना चाहिए और कैसे रिपोर्ट होना चाहिए, जिससे कि सभी बाकी मेंबर्स का भी बेनिफिट हो. एंड आई थिंक लेकिन बस यही है कि अब ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है कि हमें ऑडिट ट्रेल के बारे में एक रिपोर्ट किस तरीके से जनरेट हो और वो हम किस तरीके से सेव करें. ये बहुत जरूरी है कि इन फ्यूचर कभी भी लिटिगेशन आएगा, एमसीए से कोई क्वेरी आती है, यदि हमने मॉडिफाई रिपोर्ट दी तो हम उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमने किस बेसिस पे मॉडिफाई रिपोर्ट दी. नहीं, इसमें एक चीज और जैन साहब मैं ऐड करना चाहूंगा कि सुमित जी हमारे इंस्टीट्यूट की पॉलिटिक्स में भी है और आगे भी हम सब मिस कर रहे हैं कि इनका भी ओहदा एस्केलेट हो तो हमारी क्वेरी भी एस्केलेट हो. यस कि इसमें वो पूछ रहा 8 साल का रिकॉर्ड. यार वी आर दी ऑडिट, चलो इस साल तो नहीं लग रहा, लेकिन डाउन द लाइन 6 इयर्स के बाद कोई ऑडिटर है, उससे पूछ रहा है कि जो स्पेसिफाइड पीरियड 8 इयर्स उसका क्या ऑडिट ट्रेल रखा गया है. Why the auditor of the current year will have to see the records of the last 7 years or 8 years? This is too much. This clause must be scrapped from the law, to my mind. We cannot ask कि आप 8-7 साल पुराने, काला साहब भी अप्रिशिएट करेंगे इस चीज को कि दुनिया बदल जाएगी 7 साल में, हम 7 साल पुराने उससे रिकॉर्ड पूछेंगे सर जाके कि आप हमारा रिकॉर्ड चेक कराओ, 8 साल का ऑडिट ट्रेल कहाँ है आपका, and why we should and who is paying for it? So many questions are there. You are asking the auditors down the line 8 years that he has to see the audit trail of last 7 years. So that basically amendment is much required. अभी तो इसका इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहला साल है, अगले साल से ये इफेक्ट होने लगेगा क्योंकि अगला ऑडिटर नया आया तो पिछले साल का भी देखना है. तो कर क्या सकते हैं फिर, मतलब 7 इयर्स का तो लॉ में अमेंडमेंट, जब तक लॉ अमेंड नहीं होगा तब तक आपको उसको देखकर रिपोर्ट करना पड़ेगा. We should raise the vice. Of course. Basically vice of CA और कासा सब एक जैसे ही है, ये भी vice of CA ही है. नहीं सर, इसमें ये नहीं है कि ऑडिट रिपोर्ट तो हम करंट फाइनेंशियल ईयर की दे रहे हैं तो हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे. प्रिजर्वेशन का पूछ रहे हैं ना सर, प्रोवाइजर में प्रिजर्वेशन का पूछ रहा है. Whether the audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirement. करंट की तो बात करेंगे कि हम ना प्रिजर्व 8 साल की बात कर रहा है प्रिजर्वेशन की. तो ये दैट इज टू मच. आई डू बिल्कुल, दिस इज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन कि मतलब ये तो आपको ये अमेंडमेंट तो आनी ही चाहिए क्योंकि अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. आप लेकिन सर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स हैं उसमें तो ऐसा उसमें उन्होंने है सर है up to 8 years retention of 8 years. ओके. So we have to comment on this matter. नहीं अभी इस साल तो नहीं लगेगा क्योंकि इस साल तो लगेगा नहीं, but next year से 24-25 से करना पड़ेगा. And even to my mind one can disown also कि we are not in a position to see the last year audit trails. But again वो आपकी एडवर्स रिमार्क्स आएंगे, उससे अच्छा ये कि लॉ में उनको लेजिस्लेटर को बताना चाहिए भैया ये क्या कर रहे हो आप, 8 साल का ऑडिट एक बंदे से कराओगे क्या?
लास्ट रिमार्क मेरा यही है कि सभी लोगों को इम्प्लीमेंटेशन गाइड एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जरूर पढ़े, और बिफोर ये द साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, और ये 3 क्लॉजेज को ओपन हार्टली रिजर्वेशन दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जरूर गो थ्रू कर लें इम्प्लीमेंटेशन गाइड व्हिच इज इशूड बाय ICAI एंड विद दिस आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन गाइड ऑफ 2024। यस, जनवरी current year में जो जनवरी करंट ईयर रिवाइज्ड वन। revised. So I think so thank you very much sir. Thank for you so much. wonderful Thank you so derivation. much, Thank you sir. so Thank much. you. Thank you, Thank you, sir. Carla ji. Thank you, sir. Thank Thank you you, आशा sir. जी। सर टेम्पलेट जल्द से जल्द रिलीज कर दीजिएगा। टेम्पलेट मिल जाएगी Sure. मैडम, कल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी एंड उसका लिंक मैं शेयर ठीक कर है। दूंगा सभी पोर्टल पे। ठीक। थैंक यू ठीक है। जया जी, संजीव जी, वर्षा जी, सेमजन साहब, थैंक्स टू एवरीवन। Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thanks, sir. Sumit sir. Thank you, Asha ma'am. Thank you, Jen sir. Thank you. Thank you, Gopal sir.